I was born and brought up in a very small town in Assam. Eventually, I chose to go to UCLA. पहले दिन जब हम लोग US में लैंड किए, हम प्रैक्टिकली एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड रह गए. It was the first time we felt कि कुछ पार्शियलिटी नाम की चीज़ भी होती है दुनिया में. अगर आपकी जॉब चले जाए एंड आप H1B वीज़ा पे हो, तो वो करके आप अपनी फीस एक्चुअली आधी भी कर सकते थे. It's very very important that before you take that flight. मेरा नाम सौरभ देवरा है. I run a company called as Advantage Club. We are essentially an employee engagement platform. We work with large organizations like HCL, Tech Mahindra, Accenture, and help them manage different budgets like reward, recognition, flexible benefit for their employees. So ultimately, what we do is that we bring happiness to an average employee's life. And talking about my childhood, I was born and brought up in a very small town in Assam, जिसका नाम भी मोस्टली आप लोगों ने सुना नहीं होगा, डिब्रूगढ़. By today's geographic location or standard, it would probably be a tier 5 city. And especially if I compare to where I live in Gurgaon, it's a very, very small town. And डिब्रूगढ़ में opportunities generally कम थे for education, but वो असम को बिलोंग करता है. And generally अगर आप असम भी देखें versus other states in India, वहाँ पे opportunities थोड़ी education side कम ही रहती है. And after my studies in Assam, I did my undergrad or BTech or graduation, जो हम इंडिया में बोलते हैं, in computer science. That's where actually the genesis of going for my masters was kind of set. हमारे third year of college में, I actually started my first startup with 3 of my friends. I was in a small town, Patiala, so it was like a local portal for all the students of Patiala. What it did for us, or at least for me, was it told me मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है. I really enjoyed running that startup, and that kind of ensured that I will probably do one of the 2 things in my life. Either I will work for a startup, or probably I'll start something of my own. So उस समय सोचा कि पटियाला में probably रह के कुछ start करना और सोचना कि कोई अच्छा आइडिया आ जाए थोड़ा मुश्किल होगा, तो I'll need more exposure. So at that time, I decided either I go to a large city in India or I go outside India. So I thought going outside India would probably be the best option, especially California, जो कि एक hub है startups का. Even Silicon Valley has been there since many, many years. So वहाँ पे if I go, I'll probably get more exposure. So that was the genesis of my master's idea. And इस समय मैं third year of college में था. तो अब US जाने के लिए आपको अप्लाई भी 1 साल पहले करना पड़ता है. GRE बोलकर एक एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा. एंड GRE बाकी सारे फॉरेन वाले एग्जाम से थोड़ा टफ माना जाता है. एंड उसमें 2 पार्ट होता है, देयर इज मैथ्स एंड देयर इज इंग्लिश. मैथ मेरे लिए काफ़ी आसान था बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. मैथ थोड़ा ईजी भी होता है उसमें, बट इंग्लिश काफ़ी टफ होती है. एंड स्पेशली अगेन मेरे जो रूट्स थे डिब्रूगढ़ के, दे वर वर्किंग अगेंस्ट मी बिकॉज वहाँ पे while I was studying in an English medium school, I had good education on the English language side, but practically in school we didn't speak English other than while talking to teachers. So I had to practically overcome that entire challenge within a span of 6 months. And not only that, in getting admission to a US school, you have to do a lot more. So I actually cracked a research paper, did my GRE, maintained my GPA, also did a lot of social work, which a lot of US schools really care about, in the span of just 6 months. And luckily, exam went well for me. And luckily for me, I got more than 6 colleges. And eventually, I chose to go to UCLA, which is not only the birthplace of internet, but also one of the colleges, and is based out of California, and which was actually a hub for like my ड्रीम्स. दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्टार्ट हुई है, बनी है, मेजॉरिटी ऑफ देम हिस्टोरिकली, स्पेशली ऑन द टेक साइड. सो आई डिसाइडेड दैट दिस इज द प्लेस आई वांट टू गो. बट यूएस जाने का सफ़र जितना एक्साइटिंग होता है उतना चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज व्हेन यू गो टू यूएस, it's very different than doing higher studies in India or anywhere in abroad. Is very different than doing in India because सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की आप पे आ जाती है. आपको ना ही सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको एक्चुअली सारा काम भी करना है, अपनी लाइफ मैनेज भी करनी है. एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स इन इंडिया, आई वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड.
मैंने ज़िंदगी में उससे पहले चाय भी नहीं बनाई थी। तो वहाँ पे जाके आपको सारा काम करना पड़ेगा, अपना खाना बनाना भी पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आई टुक ट्रेनिंग एट होम फॉर अ मंथ एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर यूएस, इवन माय फर्स्ट डे वाज वेरी चैलेंजिंग. So we were 2 boys and 1 girl. We went from India together. एंड पहले दिन जब हम लोग यूएस में लैंड किए, हम प्रैक्टिकली एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड रह गए, बिकॉज यूसीएलए में एक ट्रेंड है कि वहाँ पे जो इंडियंस पहले से हैं सीनियर्स, वो अपने अगले बैच वाले इंडियंस को अपने यहाँ रुकवाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ होटल, क्योंकि होटल कैन बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड एज अ स्टूडेंट यू कांट रियली अफोर्ड इट. आप एक बार फॉरेन कंट्री में जाते हो तो इट कैन इवन टेक यू 15 to 30 days टू रियली फाइंड योर हाउस. एंड इतने दिन होटल अफोर्ड करना कैन बी वेरी वेरी चैलेंजिंग. इवन योर पेरेंट्स आर विलिंग टू सपोर्ट यू, एज अ स्टूडेंट इट डजंट फील राइट कि मैं इतना पैसा होटल में रहने में उड़ा दूं एक बार नई कंट्री में आते ही. इनफैक्ट सो इसीलिए हमारे यहाँ टिपिकली सीनियर्स के यहाँ लोग जाके रहते थे. बट जब हम लोग तीनों एयरपोर्ट लैंड किए एंड हमने अपने सीनियर को कॉल किया, जस्ट लाइक आप इंडिया में किसी के घर जाने के पहले उनको कॉल करते हो, तो उनका फ़ोन नो रिप्लाई हो गया. एंड हम लोग एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे बैठे रहे, उनको कॉल करते रहे, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था. एंड वी आर ऑल वेरी कंफ्यूज कि अब क्या करें. अब पहला दिन है देश के बाहर विदाउट पेरेंट्स, अब करें तो क्या करें. सो वी डिसाइडेड दैट लेट्स गो टू हिज हाउस एंड कैंपस में जाके देखते हैं, विल फाइंड समथिंग. So when we went to his house, he was actually very welcoming. Then we realized that the problem was that कि US में उनके यहाँ घर पे नेटवर्क नहीं आता है. एंड जब अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है तो इट डजंट टेल यू आउट ऑफ नेटवर्क लाइक इन इंडिया, इट जस्ट गोज ऑन वॉइस मेल एंड डजंट गेट पिक्ड अप. सो दैट वाज माय फर्स्ट डे इन यूएस. Then I found my house very quickly by roaming around for like more than 50 hours अगले 4 दिनों में. And I invited all my Indian friends to my house. And at that point, actually, more than 18 to 20 of Indians stayed मेरे छोटे से 2 bedroom में together for more than 20-30 days. And that was literally our starting of college experience. The first day जो हमारे कॉलेज का था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज यूएस में क्या होता है कि आपको कोर्स वर्क ऐसे इंडिया की तरफ फिक्स नहीं होता है. यू हैव टू एक्चुअली गो टू क्लासेस, सेलेक्ट द क्लासेस योरसेल्फ. एंड जब आप क्लासेस डिसाइड करते हो तो आपको उस समय पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ का करियर पाथ एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स डिसाइड कर रहा होता है, बिकॉज आप जो कोर्सेज लेते हो उसी का एडवांस आगे जाके ले सकते हो. तो एज अ स्टूडेंट इट कैन बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. एंड स्पेशली हम लोग के लिए जो इंडिया में पढ़ते हैं, हमारा करिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट होता है. लाइक इंटायर इंजीनियरिंग में मैंने मुश्किल से 1 या 2 इलेक्टिव का चॉइस किया होगा. नाउ आई हैव टू चूज एंड क्रिएट माई एंटायर शेड्यूल एंड चूज माई क्लासेस. व्हेन आई वेंट टू द campus was so huge and it had everything. मतलब हम लोगों ने तो ऐसे कैंपसेस मूवीज में देखे हैं. इंडिया के कैंपसेस भी अच्छे होते हैं बट इतना बड़ा, इतना ग्रैंड नहीं था. एंड वहाँ पे जो आर्किटेक्चर था वो भी एक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं था. एंड फिर वहाँ पे वो मशीन रखी हुई थी जो जहाँ से इंटरनेट का फर्स्ट पिंग भेजा गया था, जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था बीइंग अ कंप्यूटर साइंस मेजर. बट यूएस के जो कैंपसेस होते हैं, दे आर वेरी वेरी ग्रैंड, especially in most of their colleges, and that is a very different experience. And I was very very excited मेरे पहले दिन पे, but उसको navigate करना अपने आप में एक चैलेंज होता है. तो मैं 2 दिन कैंपस घूम घूम के लिटरली अपने सारे कलीग्स और अपने बैचमेट्स के लिए गाइड बन गया था कि कहीं भी जाना है, कैसे जाना है, कैसे करना है. एंड इट वाज सो लार्ज कि अगर आप पूरा कैंपस घूमने को जाओ तो इट विल टेक एटलीस्ट 6 से 7 घंटा पूरा कैंपस कवर करने में. Another interesting which happened in US was while you are studying in US, ये काफ़ी महंगा होता है कोर्स. Luckily मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी. थोड़ा we were okay doing as well, but still as a 23-year-old you feel कि तुम घर का बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो you try to earn some money back. एंड हमारे में से इंडियंस को किसी को भी यूसीएलए में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी. उनकी थ्योरी थी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं देते हैं. बट वहाँ पे फिर 2 अपॉर्चुनिटी थी. वहाँ पे एक रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है इंडिया के बाहर, और टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है, जहाँ पे जाके आप काम करो तो आपका 50 to 80% ऑफ फीस कैन बी कवर्ड. तो हम लोगों ने सबने रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई किया. बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू अस वाज कि किसी को कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, किसी को इंटरव्यू नहीं हो रहा था. एंड वी वर वेरी कंफ्यूज कि ऐसा हो क्यों रहा है. और इन सब के बीच में हमारे जो डीन थे, उनके साथ हमारा एक ओरिएंटेशन मीटअप हुआ.
उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, बट उन्हीं के बीच में उन्होंने बोला कि हम फॉरेन स्टूडेंट को रिसर्च असिस्टेंटशिप नहीं देते हैं, बिकॉज हम फॉरेन स्टूडेंट को एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूएस में लाते ही इसलिए है ताकि आपका फीस आप दे पाओ, और फीस में भी फर्क था बिटवीन लोकल स्टूडेंट एंड फॉरेन स्टूडेंट, एंड दैट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू अस. इट वाज द फर्स्ट टाइम वी फेल्ट कि कुछ पार्शियलिटी नाम की चीज़ भी होती है दुनिया में, एंड you as a foreign student you will be forced to pay the fees because they will not allow you to do RA-ship. बट TA-ship का ऑप्शन हमारे हिसाब से अभी भी ओपन था, तो हम लोगों ने सबने जाके एग्जाम दिया, इंटरव्यू की, 1-2 हफ्ते मेहनत करी उसके लिए, कुछ लोग का सिलेक्शन हो भी गया, बट इवन आफ्टर दैट हम में से किसी को TA-ship मिली नहीं. ऑन इंक्वायरी पता चला कि सेम डीन ने एक नया रूल बना दिया कि इस साल फॉरेन स्टूडेंट्स को TA-ship भी नहीं मिलेगी. उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, आई विल इंश्योर दैट ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैं जितनी मेरी फीस है उससे ज़्यादा अर्निंग कैसे भी करूँगा. इट वॉज लिटरली लाइक अ प्रतिज्ञा फॉर मी कि मेरे को कैसे भी पैसे कमाने भी है. ऑल्दो मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, बट स्टिल एज लाइक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई शुड अर्न मनी समहाउ. उस समय आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर कैंपस जॉब्स, लाइक रेस्टोरेंट में काम करते थे हम लोग, एज अ कैशियर काम करते थे, एज अ क्लीनर काम करते थे, वैसे काम करते थे जो आप इंडिया में करने की सोच भी नहीं सकते. कभी दूर दूर तक भी आपने नहीं सोचा होगा कि आप लाइफ में ये भी करोगे. डिड दैट फॉर 2-3 months. उसी के बाद हमारा करियर फेयर आ गया. करियर फेयर यूएस में कैसे होता है कि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वहाँ पे सारी कंपनीज आती है, आपको इंटर्नशिप और जॉब्स उन्हीं करियर फेयर के थ्रू मिलते हैं. अनलाइक इंडिया बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग या इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब का नहीं होता है. तो मेरे को वो पता नहीं था, तो मैंने पहला करियर फेयर काइंड ऑफ मिस कर दिया. एंड वहाँ पे यूएस में कैसा होता है, सब कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. तो बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ के मेरे साथ वालों को अपने इंटर्नशिप दे दी. बट मेरे को लगा मेरे को प्रिपेयर ज़्यादा करना चाहिए, जो हमारी एक इंडिया में मेंटालिटी होती है कि हम बहुत प्रिपेयर करके इंटरव्यू देंगे. मैं लगा अभी तो आए हैं, कॉलेज वर्क भी नहीं हुआ है, पढ़ाई भी नहीं करी है, तो थोड़ा टाइम लगा के पढ़ाई करके हम लोग इंटरव्यूज देंगे. बट बाय देन व्हाट हैपेंस वाज दैट मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप स्लॉट्स वाज फुल, एंड इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे के जॉब के लिए भी. तो बट आई वाज वेरी एक्टिव इन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ऑफ लॉस एंजलिस. तो वहीं पे हम लोग हैकेथॉन्स करते थे. हैकेथॉन होता है कि आप बेसिकली एक वीकेंड एक जगह पे जाओगे, 30 से 40 टीम्स होंगी, 1 या 2 लोगों की, एंड आप पूरे 48 आवर्स कोडिंग करोगे एंड फिर कोई प्रोडक्ट बनेगा उससे. तो ऐसे ही मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया और वहीं से मेरी इंटर्नशिप लगी. एंड वो इंटर्नशिप से ना ही मेरी काइंड ऑफ करियर की स्टार्टअप हो गई, बट उस समय मुझे ये भी समझ में आ गया कि दिस इज अ ग्रेट वे फॉर मी टू अचीव माई गोल टू ऑल्सो विच इज टू अर्न मनी ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम एज वेल. तो उस समय प्रैक्टिकली फिर मैंने पूरे कॉलेज टाइम इंटर्नशिप की, एंड लकीली आई अर्न इनफ that not only I paid for my fees and my living, मैं अपनी पहली लाइफ की गाड़ी भी खरीद ली थी, एज अ सेकेंड हैंड कार भी खरीद ली थी, which was a very very proud moment for me. When the job career started, मेरा सपना हमेशा एक स्टार्टअप के लिए काम करने का था, बट प्रैक्टिकली यूएस में स्टार्टअप के लिए काम करना बहुत मुश्किल है एज अ कॉलेज ग्रेजुएट, बिकॉज वहाँ के जो वीज़ा लॉज होते हैं वो आपके अगेंस्ट काम करते हैं. आफ्टर कॉलेज यू गेट बेसिकली एन H-1B वीज़ा, एंड द वे H-1B वीज़ा ऑपरेट्स, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास H-1B वीज़ा है, बट अगर आप कोई भी कारण से जॉब लूज कर देते हो एंड अगर 6 महीने में आपको कोई और जॉब नहीं मिलती है तो आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा एंड आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कांट इवन थिंक अबाउट गोइंग एंड वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप, बिकॉज अगर अनस्टेबल जॉब होगी एंड जॉब चली जाएगी तो आपका पूरा करियर एट रिस्क आ जाएगा, एंड हो सकता है आपको विदाउट योर चॉइस कंट्री छोड़ना पड़े, जो कोई नहीं चाहता. तो and there was also a general belief at that time कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करोगे तो अगले 5 से 7 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जिसके बाद आपको यूएस में आप कभी भी कितने भी टाइम के लिए रह सकते हो. बट रियलिटी डिडंट हैपन दैट वे. मैं तो इंडिया आ गया था अपने स्टार्टअप करने, बट जो मेरे फ्रेंड्स यूएस में रह गए थे वो 10 साल 12 साल से इन्हीं कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको आज तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला, बिकॉज यूएस का इमिग्रेशन लॉ पिछले 10 साल में थोड़ा अनफ्रेंडली हो गया है फॉरेनर्स के लिए. एंड लॉट ऑफ दीज गाइज हैव नाउ इवन बॉट हाउसेज इन यूएस. जब आप यूएस में घर खरीदते हो तो आपके EMI बहुत ज़्यादा होती है, आपको लिटरली 20 साल तक बहुत हाई EMI देना पड़ता है. एंड इन द मिडल ऑल ऑफ दैट अगर आपकी जॉब चले जाए एंड आप H-1B वीज़ा पे हो, एंड जो आज के दिन काफ़ी कॉमन हो गया है यूएस में, जॉब जाना इज इवन इन लार्ज कंपनीज नॉट वेरी अनकॉमन. तो यू आर प्रैक्टिकली स्ट्रैंडेड इन द प्लेस
विदाउट हैविंग एनी वे ऑफ अर्निंग, एंड आपको देश छोड़ के जाना भी पड़ सकता है, एंड कोई और जॉब भी ढूंढना अगले 3 से 6 महीने में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज एक तो आजकल जॉब्स कम हो गई हैं, दूसरा अगर आप किसी फॉरेन इमिग्रेंट को हायर करते हो तो आपको सैलरी तो लोकल के बराबर देनी ही पड़ती है, बट आपको एट द सेम टाइम उनका वीज़ा का खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो यूएस की लाइफ इज नॉट एज easy as well on this side, and I would really urge US government to consider H-1B visa process to be sorted, or their permanent residency green card to be sorted for all my friends who are out there. Being said that, I would also say that while it has been challenging, but जो आपका US का exposure है, आपके masters का exposure है, helps you a lot in your career. For me, actually, that became the defining point to work for large companies like Amazon and Microsoft, and also to come back to India and start my own company. Because आपके कॉलेज में आपको सिखाया जाता है कि आपको हर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, and that is not common in Indian universities. So that creates a foundation which allows you to think बियॉन्ड जो आपके आसपास आपको दिख रहा है कि मैं चीज़ों को बेहतर कैसे करूं। तो कॉलेज में करते करते ही हम लोगों ने आइडिया शीट बनाना शुरू कर दिया था, वेयर वी यूज्ड टू फाइंड प्रॉब्लम्स एवरीवेयर एंड राइट थिंग्स जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो हम बना सकते हैं, एंड दैट बिकेम अ फाउंडेशन फॉर माई स्टार्टअप. Today, as a company, we are doing very well, and company is worth more than 500 crores today, which makes me incredibly proud. Still, there's a long way to go, but we have been fairly successful, and अब ulti journey शुरू हो गई, in which we are a global company, and we have a US office as well. So when you go to US for a master's, fees is a very big burden. So I'd love to tell you a way जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हो कि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े. तो एटलीस्ट काफ़ी सारे कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज में भी फैसिलिटी थी कि अगर आप अपना मास्टर्स जल्दी कर ले, क्योंकि हमारे क्वार्टर की फिक्स फी होती थी एंड आप ज़्यादा क्रेडिट भी ले सकते थे, तो वो करके आप अपनी फीस एक्चुअली आधी भी कर सकते थे. जैसे हमारा UCLA में जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें 6 क्वार्टर की फीस मास्टर्स में मानी जाती थी, बट अगर वही चीज़ आप 3 क्वार्टर में अपना कोर्स वर्क खत्म करके एक और क्वार्टर में थीसिस खत्म कर लो, तो आपकी फीस प्रैक्टिकली आधी हो जाती थी. तो ऐसे ही यूएस में बहुत सारे हैक्स होते हैं जो इंडिया में नहीं होते, बिकॉज इंडिया में तो फिक्स फीस स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का, बट वहाँ पे हो सकता है आपके क्रेडिट पे फीस हो, आपके टाइमिंग पे फीस हो, जितना आप क्वार्टर पढ़ो उसके हिसाब से फीस हो. तो आप अगर अच्छे से रिसर्च करें कि तो देयर कैन बी अ गुड चांस दैट यू माइट एंड अप सेविंग almost 50% of your fees, जो काफ़ी फर्क दे देगा. एंड नॉट ओनली दैट, यू विल स्टार्ट वर्किंग अ ईयर अर्ली एज वेल इन योर करियर. तो एक साल में आप बेसिकली कमा भी ज़्यादा लोगे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई इन यूएस, एंड वो भी जो फीस होती है वो भी आप कवर कर सकते हो. आप बेसिकली यूएस में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती है, डिपेंडिंग आप जिस सिटी में हो, उस सिटीज़ में बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपको एक्चुअली पार्ट टाइम इंटर्नशिप दे सकती है आप ही की डोमेन में. एंड वहाँ की जो इंटर्नशिप है, दे पे यू very very well. उस समय पे like you can practically earn, even if you work half day, you can earn 20 to 25% of full time salary, जो आपकी टिपिकली फीस के बराबर या फीस से एट टाइम्स ज़्यादा भी हो सकती है. तो मैंने भी यही किया था, एंड बट फाइंडिंग वो इतना आसान नहीं होता है. मतलब यूएस में कैसा है कि ऐसा नहीं है कि आपके कैंपस में लोग आ जाएंगे आपको ले जाएंगे, जैसे इंडिया में होता है कि एक बस एग्जाम है, आपने दिया, एक इंटरव्यू प्रोसेस है किया. वहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है. तो यू विल हैव टू रीच आउट टू कंपनीज योरसेल्फ. आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको लोगों को लिटरली लिंक्डइन पे, ईमेल पे अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि रेफरल कर दो, एंड देन जाके आपको इंटर्नशिप लगती है. बट अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें तो आप प्रैक्टिकली अपने पूरे फीस से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स करके इन योर कॉलेज टाइम इटसेल्फ. सो आई वुड से एट दिस नोट दैट इफ यू रियली ड्रीम समथिंग, you can definitely achieve it, but it's very very important that when you are thinking about going abroad, और या आप मास्टर्स करने का सोच रहे हो या बैचलर्स बाहर से करने का सोच रहे हो, कोई भी एजुकेशन करने का सोच रहे हो, तो आपका एंड गोल जो है वो एजुकेशन या वो कंट्री नहीं होनी चाहिए. आपका एक एंड गोल होना चाहिए, एंड स्टडिंग अब्रॉड एंड योर कोर्स शुड बी अ वे टू अचीव दैट. It's very very important that before you take that flight, your life goal, or at least your goal 10 years down the line, should be very clear, because of which you are going to do masters or bachelors, or you're going outside. It should not be other way around कि वहाँ जाके देखेंगे कि क्या होता है.